میری بہن کا بیٹا شہر میں پڑھنے آیا تو میں نے اسے اپنے گھر رکھ لیا کیونکہ میں اکیلی ہوتی تھی۔ شوہر ملک سے باہر تھا۔ شوہر سے بات کی تو وہ مان گیا۔ میری بہن کا بیٹا میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ بازار سے کچھ بھی لانا ہوتا تو وہ لا دیتا۔ پھر میں ایک دن بیمار ہو گئی اور پھر میری بہن کا بیٹا کہتا کہ آپ اب آرام کریں۔ رات کو وہ مجھے دودھ کے ساتھ دوا کھلا کر چلا جاتا۔ جب صبح اٹھتی تو مجھے بہت سکون ہوتا۔ ایک دن میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم حاملہ ہو۔ میری تو جان نکل گئی اور آسمان میرے سر پر آ گرا۔ میں ہونکوں کی طرح ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تھی جو مجھ پر ایسا دھماکہ کر چکی تھی کہ میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ گویا مجھ پر آسمان ہی آن گرا ہو۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں مان ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے کہا کہ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے صرف پیٹ درد کی شکایت ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، پھر میرے سامنے میری رپورٹ رکھ دی۔ کہنے لگی کہ 3 سال سے تو آپ مجھ سے اسی چیز کا ٹریٹمنٹ کروا رہی تھیں۔ اب آپ کو اللہ نے یہ خوشخبری سنائی ہے تو آپ کو شکر کرنا چاہیے، وہ یقینی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں اپنی رپورٹس دیکھ کر بدحواس سی ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی میں ایسا بھیانک موڑ بھی آ جائے گا۔ میں تو سن کر ہی چکرا گئی تھی۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ میرے شوہر کی نوکری باہر کے ملک میں تھی۔ وہ سال میں بس چند ماہ کے لیے ہی پاکستان آتے اور اس وقت میری خواہش ہوتی کہ اس دوران میں امید سے ہو جاؤں تاکہ میرا دل بچے میں لگ جائے، لیکن ہر بار مجھے مایوسی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ لیکن ابھی تو وہ پردیس میں تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے کچھ نہ کہا، اپنی رپورٹس پکڑی اور مرے مرے قدموں سے باہر آ گئی۔ میرا ذہن اس وقت بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اور ماں۔ میرے گھر سے کلینک کا راستہ بس ایک گلی کی مسافت کا تھا، لیکن مجھے اپنے قدم اتنے بھاری لگ رہے تھے کہ جیسے میرے کندھوں پر کوئی بھاری بوجھ ڈال چکا ہو۔ ہم 2 ہی تو افراد تھے گھر میں، تیسرا تو کوئی نہیں تھا، ایک میں اور دوسرا ماجد۔ میرا ذہن مکمل طور پر سوچنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ کیا سوچتی، کیسے سوچتی؟ ماجد میرا سگا بھانجا تھا، میری سگی بہن کا بیٹا۔ اپنی سوچوں کے تانے بانے بھی سمٹ نہیں پائی تھی کہ اپنے گھر کے گیٹ تک پہنچی۔ میرے قدم وہیں رک گئے تھے۔ مجھے لگا کہ میں کلینک سے یہاں تک اپنے بجان وجود کو کس طرح گھسیٹ کر لائی ہوں۔ میرے گلے میں اس قدر گرہیں پڑی تھیں کہ مجھے سانس لینے میں بھی گھٹن ہونے لگی تھی۔ میں نے ڈور بیل دی تو ماجد نے ہی دروازہ کھولا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ میرے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ کہنے لگا کہ خالہ آج آپ نے اتنی دیر کر دی۔ میں نے پہلے تو آپ کا کھانے پر انتظار کیا، لیکن پھر مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوئی، اس لیے میں نے تو کھانا کھا لیا۔ آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، کھانے کا پوچھ رہا تھا، لیکن مجھے اس کا وجود اس وقت ناقابل برداشت لگ رہا تھا اور میں خالی ذہن لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ 22 سالہ ماجد میرا سگا بھانجا تھا، میری سب سے بڑی بہن کا بیٹا۔ مجھے ہمیشہ سے بچوں کی طرح عزیز تھا، جو جاب کے سلسلے میں یہاں شہر آ گیا تھا اور پچھلے کئی ماہ سے یہاں میرے پاس رہ رہا تھا۔ میرے شوہر کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے شوہر میرے کزن بھی تھے، اس رشتے سے آپا اور ماجد سے بہت بے تکلف سے تھے۔ ماجد کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، بلکہ وہ تو بہت خوش تھے کہ انہیں میری فکر نہیں ستائے گی۔ خالہ کہاں کھوئی ہیں؟ ماجد کی بات پر میں چونک سی گئی۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، سر میں درد ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ میں ماجد سے یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنی رپورٹس دراز میں رکھیں اور اپنا بجان وجود لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میری سوچ ختم ہو چکی تھی۔ ماجد میرا سگا بھانجا تھا، میری بہن کا بیٹا، اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور آپا سب سے بڑی۔ جب آپا کی شادی ہوئی تو میں اس وقت 8 سال کی تھی اور جب آپا کے گھر ماجد پیدا ہوا تو میں 10 سال کی تھی۔ میری آپا کا سسرال کافی مذہبی، 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھی جاتی تھی اور ماجد بھی نماز مسجد میں جا کر ادا کرتا تھا۔ نہ مجھے اپنی آپا کی تربیت پر شک تھا اور نہ ہی ماجد کے کردار پر شک کر سکتی تھی، لیکن جو رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی وہ میرا سارا شک ماجد کی جانب بھی مبذول کر رہی تھی، کیونکہ میں اور ماجد کے علاوہ گھر میں کوئی تیسرا افراد ہی نہیں تھا۔
जिस पर मुझे शक होता। मैं अपना सर दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिनों से माजिद मुझे दूध के साथ दवा देता था, जिसे खा कर मैं गहरी नींद में चली जाती थी, और जब मैं सुबह उठती तो मैं फ्रेश होती थी। क्या माजिद मुझे नींद की दवा देता था? और मेरे सोने के बाद टिप टिप आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। मेरे गले में आंसुओं का गोला था, जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी। क्या सगे रिश्ते इतने नापायद हो चुके हैं कि हवस के आगे कुछ भी नजर नहीं आता? मैं इसकी सगी खाला हूँ, यानी माँ की बहन, मतलब माँ ही हुई। वो मेरा महरम है, मेरा इससे पर्दा भी नहीं। जैसे कैसे वो मेरे बारे में ऐसे सोच सकता था, और कैसे इसका दिल इस गुनाह के लिए आमादा हो सकता था? मैं हिचकियों से रो रही थी, और अजियत का अंदाजा शायद कोई लगा ही नहीं सकता जो मैं सह रही थी। एक नाकाबिले बर्दाश्त सी कैफियत में थी। मुझे याद आने लगा कि जब वो बचपन में आपा के साथ मेके आता तो मेरी गोद में आ जाता था। अपनी तोतली जबान से मुझे खाला के बजाय ताला ताला कहता था। मैं सबसे छोटी थी और वो आपा की सबसे पहली औलाद, इसलिए मेके में इसका सब ज्यादातर वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। कब मेरी शादी होने वाली थी तब वो नया नया कॉलेज में गया था। मुझे मजहर के नाम से बहुत छेड़ा करता था, कहता आप इतनी खूबसूरत मनमोहनी सी हैं, और वो ये लंबे चौड़े गबरू जवान से, ऊपर से हैं भी बड़े गुस्से वाले। खाला मजहर अंकल के साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगी। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का ही अच्छा लगेगा। हर वक्त वो मुझे मजहर के हवाले से छेड़ता रहता था, हंसता था, मजाक करता था। मैं इसे बस घूरती रहती थी। मेरी और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी। जब वो यहाँ आया था तो मुझसे रात देर तक बातें करता रहता था, हंसता था, मजाक करता था। अब भी यही कहता कि मुझे लगता है कि मजहर अंकल ने परदेश में किसी मेम से शादी कर ली है, तभी तो वापस आने का नाम नहीं लेते। जब मैं इसे गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। इसे देखकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब माजिद मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आ गया। अब भी इसके हाथ में दूध का गिलास था और मेडिसिन थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बेड पर बैठ गया, लेकिन इसके बेड पर बैठते ही मैं खौफ से पीछे हटकर बैठ गई। मुझे न जाने वो क्या कर देगा। और ये एक फितरी सी बात थी कि जो कुछ मैंने डॉक्टर से सुन रखा था, मेरी जगह कोई भी होती तो इस वक्त ऐसे ही खौफ खाती। मैं अकेली इस वक्त माजिद के साथ इसके घर में मौजूद थी। वो मुझे यूं खौफजदा देखकर हैरान हुआ था। क्या बात है खाला, इतना घबरा क्यों रही हैं? सब खैर तो है ना? ये लें दूध पिएं और आराम करें। माजिद ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया। मैंने गिलास इसके हाथ से लेकर साइड पर रख दिया और सख्त लहजे से इसे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी कि अब वो मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किस्से सुनाएगा, और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर न हो जाएं, वो उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे पर वो घबरा सा गया, कुछ हैरान भी था। क्या बात है खाला, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं तो बस यही पूछना चाहता था कि आपको तहज्जुद के लिए उठाऊं। शायद मेरे रूखे लहजे से वो परेशान हुआ था। मुझे इस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रचा रहा था, जैसे मासूम हो, अनजान हो, बहुत नेकोकार हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मार दूं और फिर अपनी रिपोर्ट इसके मुंह पर दे मारूं। ये देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और इसे धक्के देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि इसे रंगे हाथों पकड़ूं, वरना वो मुकर ही न जाए। मेरे सर में दर्द है, मुझे तुम बिल्कुल जगाने के लिए मत आना। मैं सोना चाहती हूँ। मेरे उखड़े लहजे के सामने वो चुप सा था, फिर उठकर कमरे के दरवाजे तक चला गया। आप आराम करें, और हाँ, दूध जरूर पीकर सोइएगा। खाना भी नहीं खाया आपने। मुझे दोबारा से दूध पीने की ताकीद करके वो कमरे से बाहर चला गया। मैं यही तो जानना चाहती थी कि दूध और दवा खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने तो वो दूध का गिलास लिया और इससे खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और मेडिसिन भी दराज में रखकर लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे इस वक्त का इंतजार था कि जब माजिद मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। मैं इसका इंतजार कर करके तंग आ चुकी थी।
और मुझे नींद भी आने लगी थी, इसलिए सोचा कि खुद ही देख आऊं कि वो क्या कर रहा है। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकली तो लाउंज भी खाली था। सामने का कमरा माजिद का था। मैंने धीरे से जब इसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने इसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मेरे जहन में वो वाक़यात गुजरने लगे कि जब आपा मुझे फ़ोन पर पहली बार आपा ने कहा था कि माजिद शहर में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं इसके हक में नहीं, इसे हॉस्टल में रहने की इजाज़त नहीं दूंगी। कई किस्म के नौजवान होते हैं, मेरा माजिद सीधा सादा सा है, कई गलत लोगों में न फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी न हो जाए। तुम तो जानती हो ना कि हमने कैसे इसकी तरबियत की है। मेरी बच्ची तहज्जुद गुजार है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हो वहाँ 100 बुराइयाँ जन्म लेती हैं। इसलिए अगर तुम इसे अपने घर रख लो तो मुझे इत्मीनान रहेगा। इस वक्त मैंने बड़ी फराख दिली से दिखाते हुए हामी भरी थी कि माजिद मेरा भांजा नहीं, मेरा बेटा है। जाहिर है वो मेरा सगा भांजा था और भांजे और बेटे में कोई फर्क नहीं होता। मेरा सर दर्द से फटने लगा था। मैं एक बहुत तकलीफ दे अजियत से दो चार थी। मेरा भांजा इस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। इसकी मेरी तरफ पुश्त थी, इसलिए वो इस बात से अनजान था कि मैं इसे सिगरेट पीता देख चुकी हूँ। मैं धीरे से इसका कमरा बंद करके अपने कमरे में लौट आई थी। मुझे 100% यकीन था कि यकीनन वो नशे वाला सिगरेट पीने लगा है, जब ये अपने रिश्तों का तकद्दुस नहीं रहता। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अपनी आपा से कैसे कहूं कि माजिद किस किस्म का शख्स है। मेरी आपा दिल की मरीज़ा थी। अगर वो ये सच जान जाती कि माजिद ने मेरे साथ क्या किया है तो शायद सुनते ही मर जाती, लेकिन मैं सोच चुकी थी कि माजिद को सुबह ही कह दूंगी कि अपनी रिहाइश का इंतज़ाम कहीं और कर ले। मैं इसे अपने घर पर नहीं रख सकती थी। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से धड़धड़ाया गया था। मैं चौंक कर उठी। दरवाज़ा खोला तो सामने माजिद मुझे गुस्से से देख रहा था। दरवाज़ा क्यों लॉक किया था आपने खाला? इसका मुझ पर रौब जमा के पूछना मुझे गुस्से से तपा के रख दिया था। वो होता कौन था मुझसे इस लहजे में बात करने वाला? इसको शायद तकलीफ इस बात की हो रही थी कि इसका रास्ता भी मैंने बंद कर दिया। जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था, शायद इसकी तलब ना पूरी होने की वजह से वो यूं अकड़ कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले? मेरे भी बुलंद और सख्त लहजे को सुनकर वो कुछ हैरान हुआ था। फिर नर्म लहजे से बोला, खाला रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो मैं परेशान हो गया, कहीं आप बेहोश ना हो गई हों। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो लॉक था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज़ दरवाज़ा लॉक मत किया करें। मुझे इसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर इस पर शिद्दत से गुस्सा आने लगा। मैंने कहा कि मेरी फिक्र तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तल्ख लहजे में कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और करके अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में मेरी उम्र की खातून रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी मेरे मियाँ बैरून मुल्क जाते तो वो औरत मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी इससे दोस्ती भी बहुत थी। इसके शोहर भी मुझे छोटी बहन जैसा समझते थे। जब भी बाजार से सौदा सल्फ लेने जाते तो मुझसे पूछते कि बहन कुछ मंगवाना हो तो बिला तकल्लुफ बता दो। मैं इनसे अक्सर सौदा मंगवा लिया करती थी, लेकिन जब से माजिद आया था मैं हर काम माजिद से ही कहती थी। इस वक्त मुझे अपनी पड़ोसन जाहिदा से ये काम था कि मुझे अपना अबॉर्शन करवाना था। मेरे मियाँ 2 माह बाद आने वाले थे। मेरे पास इस गुनाह को ख़त्म करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि जाहिदा से कैसे कहूँ, क्या कहूँ। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन मुझे किसी न किसी औरत को तो एतमाद में लेना था। बिना सच बताए मुझे ये कदम उठाना था। आपा को सच बताती तो वो सह नहीं सकती थी। अगर शोहर से कहती तो वो मुझे कभी निकाह में न रखता, मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं जिस अज़ियतनाक कश्मकश का शिकार थी ये मैं ही जानती थी। मैंने जाहिदा से कहा कि मेरे पेट में रसोली है, मुझे ऑपरेशन करवाना है, इसलिए वो मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। वो मान गई और मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई, जिसके साथ कई सालों से इलाज करवा रही थी। बल्कि मैं एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और इससे कहा कि मेरा ये काम राजदारी से कर दे तो मैं इसे ठीक ठाक पैसे दूंगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई।
लेकिन इसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह लरस के रह गई। मैं रात को घर आते ही माजिद से कह दिया कि मैं तुम्हें मज़ीद अपने घर पर नहीं रख सकती, इसलिए 2-3 दिन में अपनी रिहाइश का जहाँ चाहे इंतज़ाम कर ले। मेरी बात सुनकर वो शशता सा होकर देख रहा था। खाला, ये आप क्या कह रही हैं? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊं? मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह सकता हूँ, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी? मुझे माजिद की मेरे लिए फिक्रमंदी भी खल रही थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे आने से पहले भी अकेली ही रहती थी, बहरहाल चंद दिनों में अपना इंतज़ाम कर लो। वो जवाबन कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान ज़रूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मैं सो रही थी, मेरा कमरा लॉक था। अब मैं कमरा लॉक करके सोती थी। कुछ ही देर में मैं नींद की गनूदगी में जाने लगी। फिर मुझे कुछ होश न रही थी। रात को जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा कि मैं शख्स को देख नहीं पा रही थी। बस ये नजर आ रहा था कि मेरे बराबर कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ न सूझी तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे बराबर लेटा शख्स उठकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर जाती, शख्स ने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया। अब तो मैं बदहवास सी हो गई थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई तदबीर इख्तियार करती, इस शख्स ने साइड टेबल पर रखा लैंप ऑन कर दिया। इस शख्स को देखकर तो मैं अपने हवास ही खो बैठी थी। मेरे सामने मेरा शोहर था। मजर कब घर आए थे, वो भी बिना किसी पेशन गोई इतला के यहाँ अचानक से आ गए थे। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो माजिद ने दरवाज़ा खोल दिया था। इसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगता तो कमरा लॉक था। मत पूछो, खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम, यहाँ कौन सा कोई गैर था जो तुम दरवाजे लॉक किए सोई थी? मजर की बात का मैं क्या जवाब देती? मैं इस वक्त बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई थी, इसलिए मजर के साथ लगकर मैं बेतहाशा रोने लगी। वो तो मुझे यूं रोता देखकर समझे कि मैं इनसे उदास हो गई थी, इसलिए यूं इन्हें अचानक सामने पाकर रोने लगी हूँ। लेकिन हकीकत तो जानती थी कि मुझ पर क्या बीत चुकी है। वो मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी तो मजर अभी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मैंने डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने जाना था, लेकिन मजर की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं था। अब मैं सोचकर परेशान थी कि मजर से क्या बहाना बनाऊंगी, कैसे ये बात छुपाऊंगी। मैं परेशान सी बाहर लाउंज में बैठी थी जब माजिद किचन से बाहर निकला। वो शायद अपने लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख रहा था और मुझे देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, खाला कैसा लगा आपको अंकल का सरप्राइज? मैंने इसे गुस्से और नफरत से देखा और कहा कि किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ खाला कहते हो और दूसरी तरफ। मैं ये सब सह सहकर थक चुकी थी, इसलिए बिना लिहाज के मैंने इसे जो जी में आया कहना शुरू कर दिया, और वह ऐसा ढीठ था कि अब भी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा कि खाला क्या कह रही हैं आप? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैंने ऐसा भी क्या किया है जो आप इस तरह से मुझसे बात कर रही हैं? माजिद की बात पर मैंने इसे तासुब से देखा और अपने कमरे में चली गई। मजर अभी सो रहे थे। मैंने दराज से अपनी रिपोर्ट्स निकाली और कमरे से बाहर आ गई। मैं माजिद अब टेबल के पास खड़ा था। मैंने वो रिपोर्ट्स इसके मुंह पर मारी, जो कि इसके चेहरे से टकराकर जमीन पर गिर गईं, और कहा, ये पढ़ो और अपना गलीज चेहरा लेकर मजर के उठने से पहले दफा हो जाओ मेरे घर से। मैं गुस्से से दबे दबे लहजे में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मजर को इस बात की भिनक भी पड़े। माजिद ने वो रिपोर्ट जमीन से उठाकर खोली। जैसे ही इन्हें पढ़ा तो इसके चेहरे की रंगत उड़ गई, चेहरे पर बदहवासी सी छा गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मजर लाउंज में आ गए थे, पता नहीं कैसे, लेकिन वो सीधा माजिद के पास गए और रिपोर्ट्स इसके हाथ से लेकर पढ़ने लगे। इन्हें देखकर तो मेरी जान ही मेरे तन से जुदा हो गई थी। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मजर तो मुझे तलाक दे देंगे। मैं बुरी तरह से चकरा कर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे ड्रिप लगी हुई थी। मजर बड़ी संजीदगी से मुझे देख रहे थे। मेरी तो रूह फना हो गई थी। माजिद भी वहीं खड़ा था। मैं मजर को देखकर रोने लगी। मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है। मजर, माजिद मुझे नींद की मेडिसिन दिया करता था, मुझे कुछ इल्म नहीं। खुदा के लिए मुझे तलाक मत दीजिएगा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ जोड़े मजर से माफी मांग रही थी।
وہ میرے پاس آئے، میرے جڑے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگے، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے تمہارے سارے ٹیسٹ نئے سرے سے کروائے ہیں، تم پریگننٹ نہیں ہو۔ شاید کسی اور کی رپورٹس تمہاری رپورٹ سے بدل گئی تھی۔ نہ تم گناہ گار ہو اور نہ ہی ماجد نے ایسا کچھ کیا ہے۔ تم اس کے کردار پر شک مت کرو، بس ایک غلط رپورٹ کی عدل بدل سے یہ سب غلط فہمی ہوئی ہے۔ ماجد کی طرف جب میری آنکھ پڑی تو وہ رو رہا تھا، بنا آواز کے آنسو بہا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، خالہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ مجھے اپنی ماں میں اور آپ میں کبھی کوئی فرق دکھا ہی نہیں۔ میں نے تو کبھی کسی غیر لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو آپ تو میری ماں کی جگہ ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں نشے کی سگریٹ پیتے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نشے کی سگریٹ ہرگز نہیں پیتا تھا، ہاں کبھی کبھار سگریٹ ضرور اپنا کمرہ بند کر کے پی لیتا تھا۔ آپ کا خیال اس لیے رکھتا تھا کہ میں نے اپنا بچپن آپ کی گود میں گزارا ہے، اس لیے جیسے میں اپنی ماں کے کھانے پینے اور دوا کا خیال رکھتا تھا، آپ کا بھی رکھنے لگا۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو میری وجہ سے اس قدر اذیت کا سامنا تھا تو میں کبھی یہاں نہیں آتا۔ وہ رو رو کر اپنی باتوں کی وضاحت دے رہا تھا۔ ایک غلط رپورٹ نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ کیا میں نے اپنے بھانجے کے خلاف نہیں سوچا تھا، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اکثر رپورٹس بھی غلط نکل آتی ہیں۔ میں اب سوچ رہی تھی کہ کاش ایک بار اپنی رپورٹس دوبارہ سے چیک کروا لیتی تو ایسا نہ ہوتا۔